Because I'm sure all of you have very bright future, cat or no cat. You should first off have that belief always. And cat is about consistency. मतलब मेरे को जो याद है 17 साल के बाद मैं तो कभी cat की तैयारी में टच में नहीं. So take your practice tests regularly. Very important. It gives you it lets you know yourself better. Right? If you know yourself better, that is the beginning of all wisdom. Right? I have a very old friend. He's so old, he's dead now, Aristotle. He once said that, this, what I said just right now, that knowing yourself is the beginning of everything. And if you look at anyone who has achieved any kind of greatness in their life, whatever, greatness doesn't mean you are published in books, your picture is there everywhere. That is also, but even we find great teachers, great mentors, great, doctors in our life. So those people are self-aware. Any top athlete, any top person, they are very self-aware. And generally, the biggest challenge most of us face is that we are going through the motion, right? That we are also doing something that most of the people are doing. But once you put it in context with, who you are, results amplify, they multiply, right? आप सबके पास मैथ्स की, साइंस की काफी नोटबुक्स होंगी, है ना? काफी नोटबुक्स अपनी लाइफ में भरी होंगी. ऐसे रजिस्टर काफी भरे हैं ना बचपन से लेके अब तक. एक नोटबुक पे सब्जेक्ट पे अपना नाम लिखो, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा ROI आनी है, राइट? ROI तो आप सब पढ़ते हो ना, दैट इज यू. अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, व्हाट यू लाइक, योर वैल्यूज, योर नीड्स, पुट दैट इन मोर क्लैरिटी, वर्क ऑन इट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एक बहुत ही अच्छी सी नाइस नोटबुक A5 साइज, जो कॉफी शॉप पे आप बैठ के लिखो तो यू लुक सेक्सी राइटिंग इट, हैव समथिंग लाइक दैट. Take your notes on it and and do it with a lot of sincerity. और टेस्ट का भी क्या पर्पस है कि क्वांट दे रहे हो तो कौन से टॉपिक में कम मार्क्स आते हैं, फिर उस पर ज्यादा एनर्जी लगाओ, राइट? just so that where ROI is more, so that way you will be better able to get results, get more out of juice must be worth the squeeze. If you are just making an effort where you will not get good results, it will be wastage of energy. क्योंकि 10 मिनट ही है तो एक इसी पॉइंट को बस लेके याद रखो. एंड ट्रस्ट मी, आई एम अहमदाबाद से भी कुछ नहीं होता. आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड आई स्ट्रगल्ड. माय लाइफ चेंज व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग माई सेल्फ बेटर. मेरे को लगता था मेरे को बिलियनियर बनना है, बट आई नेवर वांटेड दैट. और जब मैंने मेरे को पता कि मेरे को ये नहीं चाहिए, नाउ आई ड्राइव अ स्पोर्ट्स कार, राइट? सो इट चेंजेस योर लाइफ वंस यू आर सेल्फ अवेयर. एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग आफ्टर दैट. So your passion lies in sports, right? I love sports. And he has been a great sportsman. I remembered him because we interacted only on a couple of he cricket was my matches. senior at IMM. Yeah. So I remembered him because he was such a quick, fast bowler. It was a challenge facing him. So that was his, rest we were, separated by 1 year. और कोई अपनी life में होता. But his passion to give back to the students, I really appreciate it. Right? So that's good. कोई क्वेश्चन हो आपका तो you can ask. Jaguar F-Type, best one. Yeah. I'm Nimrat. I would want to know in case there's anything that, so if you look back at your journey and you would have done one thing differently, what would it be? I have a huge regret about the same thing I told you. And you should have regrets. People tell you you should not have regret. You should have regret because then you again fall back to your foolishness. I think I have regrets that I realized my potential very late. I wasted it away. I was arrogant. I was not a very good team player. Once those things changed, things changed for me also. So a lot of time people, when they look at I was very fortunate. Again, this is also a blessing that you introspect. A lot of time there is a tendency you say that timing was not right, so you didn't find right people. But once you introspect and start improving yourself, that is the one thing. I think if I would have started change, I would have changed 7 years earlier. I would have appreciated that right now. That is one regret I keep with myself. I'm not consumed with it, but I talk about it often enough so that again I don't lose. When I was in school, labeling is, when you're self-aware, you get your sovereignty.
right? Because otherwise you are labeled. You're labeled as bully, or you're labeled as naughty, or you're joker of the class. I was labeled as genius, and that got to my head, and I stopped making effort, and it affected my life. So few couple of years back again, someone said, "Sir, you are a genius." मैं कहा, गाल काट ली पर है ना बोली. So don't get labeled. Whatever the label, you should define it yourself. So when you are self-aware, no one will be able to label you. If you are, let's say, 5'10", I can't tell you you are 5 feet, right? You are that. But if I label you as you are not smart enough, you are average, because you are not sure who you are, you might accept that label. And people try to put labels on others. So self-awareness gives you your sovereignty back. You know yourself better. It's a better life. It's a more rewarding life. So Online later, offline first. सर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी एमबीए जो भी करता है वो जॉब को प्रेफर करता है हाँ. तो सर आपने कैसे शिफ्ट किया मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू शिफ्ट What motivated me to shift into entrepreneurship? यस Look, मैं हमेशा entrepreneur बनना चाहता था, और पहले तो जो मेरा रीजन थे, they were all wrong reasons, to be very honest. I am a finance guy. I got day zero placement in Singapore because it gave more money. I'm very good in maths, and I'm studying. I'm very good at. So that, but I don't make. I didn't used to make it. Now I think I'm reasonably hardworking. Earlier I was not a hardworking person. So all the returns come from hard work and grit. So switch was this switch, the latest switch that I have made. It was more about because I had already built. I was group CEO for a big, so I already made my connects. I became a part-time entrepreneur. So when it became profitable, and fortunately, someone wanted to hire me. I said no. So it hurt. He was a billionaire. It hurt his ego, and he said, "I will put in money. I will buy your company." I said, "Buy it. Why not?" So that is how By the way, he is an author of a book called Switch. the switch Yeah, the Switch. switch from good to great. Good to Because great. good is your biggest. आप लोगों का challenge क्या होगा? Most of the लोगों का, I'm sure some people, but probabilities are low. We all make plans. The problem is life is good. मेरी problem क्या थी कि life तो good थी. अगर आप आयन से पढ़ लियो तो life good तो चलती रहेगी. So it stops you from achieving. It is a corrosive effect. Good क्या करता है? Good वो आवाज है जब आप सुबह का अलार्म लगाते हो ना. गुड वो आवाज है जो आपको कहती है कि 10 मिनट और सोते हैं फिर उठते हैं, राइट? और बाद में खूब पढ़ाई करेंगे. गुड इज दैट वॉइस इन योर हेड. क्योंकि गुड आपको कॉन्सिक्वेंसेस से ब्लाइंड कर देता है. आज लेट सपोज आप लोग क्लास में बैठे हो, अगर आप बंक मार देते क्या होना था? रात को जो घर पे बना वही मिलना था. ऐसा थोड़ा कि नहीं तो तंदूरी चिकन मिलना था, को खाने पड़ेंगे, क्या होता है बैंगन वैंगन, ऐसा तो कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं नजर आते. सो गुड blinds you from immediate but long term consequences आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे. what kind of friends you will have, what kind of health you will have, what kind of respect you will have, and it has consequences on everything. Yeah, online. Yeah, so this is just Vani, yeah, so you said ki self-awareness is very important. So it's when not very important. It is the key. It is the only thing. I so think when did you realize it? Ki now you have to see ki there's not like sudden movement. Again, like sometimes you are lucky also. मेरे को एक बार पेक वालों ने टॉक देने के लिए बुला लिया. उनको लगा आई एम से बड़ा इसको बोलना आता होगा. But I have never been on stage in my life earlier. In my now, I have given TED talk and everything, but earlier never been on the stage. So, but I was always brave, and I gave that talk, and I thought I will make that talk about courage. So that was one point. Then certain setbacks humbles you, and sometimes it is I can't give you exact moment, and don't wait for that moment. If sometimes with lot of things that we learn from our important texts, like अगर आप गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अच्छी कोई भी अच्छा टेक्स्ट पढ़ लो, तो they're talking about the same thing. मान लो और उसको चलने की कोशिश करो, है ना? ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती. आप एक चीज सही करते हो, आप then you start doing. आपके अंदर एक विश्वास आता है कि no, I will think like that, I will work like that, I will change my attitude. Yet, and for me, one biggest lesson in my life is that I love challenges now. I don't want easy life. यहाँ पे कितने लोग सोचते हैं कि बस एक दिन हम उठे और कैट क्लियर हो गई हो, हमें कुछ ना, ऐसा होना नहीं है.
राइट? ये सपने देखते हैं ना, मैं तो बचपन में देखता था कि अब मैं बस मेरा एग्जाम क्लियर हो गया हो, है ना, मैं उठूं, सारा साल निकल गया हो और मेरा एग्जाम में टॉप हो गया और मेरे को कुछ ना करना पड़े। वो होना नहीं है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर विशेस इन इम्पॉसिबल। वो भगवान ने नहीं करना, भगवान काम करता है पर जो पॉसिबल है। अब मेरा वजन बढ़ जाए, मैं बोलूँ कि भगवान अब मैंने तो कुछ नहीं करना, तो अर्थ की ग्रेविटी कम करे, दैट्स नॉट गोना हैपन, राइट? सो लव चैलेंजेस, ये कहना सारे लोग कहते हैं, पर इसका जब मतलब आप समझोगे ना, इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस तो आने ही, लाइफ इज टफ। अभी कुछ नहीं पता, नीचे जाते जाते किसी का पैर अड़ जाए, टांग टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? वी लूज आवर लव्ड वंस, किसी जिसको पसंद करते हैं उसको चोट लग जाए, सो मेनी थिंग्स हैपन इन लाइफ। एक एग्जाम ऐसा आ जाए, तो लाइफ तो टफ ही रहनी है। यू कैन बी टफर, स्लाइटली टफर देन दैट, टेक ऑन एंड लेट से ब्रिंग इट ऑन। फिर ना आपके अंदर जो केमिकल्स ही जनरेट होते हैं ना, दे आर वेरी डिफरेंट। एक है बास्केटबॉल मैच में भी तो एक चैलेंज होता है ना, आप जो ब्रिंग इट ऑन, देन यू एंजॉय दैट चैलेंज, इट मेक्स यू टफर। पर अगर ऐसा हो कि you are standing and someone you are not, you don't want that challenge, but it is going to come anyway, right? So it's going to come anyway. So have that attitude, let the life bring on something, let it punch you sometime, and it's good fun. गुड। Yes. सर जैसे कि आप कहते हो कि एक्चुअलाइज होना बहुत जरूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइज, मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड नहीं बोला अभी तक, सेल्फ अवेयर बोला। सेल्फ अवेयरनेस क्या कह रहे हो? एक्चुअलाइजेशन तो धीरे धीरे आ जाए शायद। Self actualization is a derivative which will start from being self aware. Actualization आ जाए, nothing like that. जैसे कि अगर सेल्फ अवेयरनेस आप कह रहे हो आ जाए, बट कभी कभार क्या होता है मैं इसको भी देखो, प्रिसाइज होना बड़ा जरूरी है। यू नो व्हाई अ वॉच कॉस्ट 4 लाख रुपीज और 4,000 की भी वॉच आती है, कितना फर्क होता है, प्रिसीजन का फर्क होता है। सो बी प्रिसाइज। मैंने ये नहीं बोला कि आ जाए, मैंने कहा बी सेल्फ अवेयर और मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स इट, टेक नोट्स। मैथ्स कैसे आया आपको? ऐसे थोड़ा कि आ जाए मैथ्स, फंडामेंटल से शुरू किया ना, नंबर सिस्टम से, जो भी चीजें होती है 1 2 3, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन तक पहुंचे, ऐसे पहुंचते हैं ना। तो ऐसे सेल्फ अवेयरनेस इज अ जर्नी, you will discover layers after layers of yourself and then you will start making better smarter decisions. तो प्लीज बी प्रिसाइज। मैं जो बोल रहा हूँ प्रिसाइसली सुनो। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ, मैं बड़ा एग्जैक्टली बोलता हूँ, जो मेरे को चाहिए मैं वही बोलता हूँ। प्रिसीजन, मैंने आगे भी आई थिंक वन वीडियो आई मेड ऑन दिस। भगवान कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। उसका वो क्या था? उसके अंदर कई मिलियन टीथ थे जो रिवर्स डायरेक्शन में चलते थे, और वो जब उनके हाथ से जाता भी था तब भी उनके कंट्रोल में होता था। तो मैं सोचता हूँ कि उनके पास और तो कोई सुपर पावर नहीं थी, बट ही मैनेज्ड एवरीथिंग, और उनकी सुपर पावर थी उनके वर्ड्स। प्रिसाइज वर्ड्स गिव यू पावर, लूज वर्ड्स दे टेक अवे योर पावर। आप किसी को गलत बोल देते तो बाद में खुद को भी अफसोस होता है, वो आपकी पावर ले लेता है। बी वेरी वेरी प्रिसाइज, सुनो भी प्रिसीजन से, राइट? और समझो भी प्रिसीजन से, ये भी बहुत क्रिटिकल पार्ट है। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि खुद को जानना, बट एग्जांपल लो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, ठीक है, और मेरे को अपनी शॉर्टकमिंग दिख रही है, ठीक है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड एम फॉर IIM अहमदाबाद, और लिव इन द रियलिटी? एंड देखो, जो आप रियलिटी बोल रहे हो वही रियलिटी है, ठीक है? अगर आप खुद ही ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको खुद ही नहीं लग रहा है ना। देखो, पहली तो बात ये है कि मैंने आपको सबसे पहली लाइन क्या बोली, यू गाइस विल बी सक्सेसफुल, आई एम जाओ या ना जाओ, है ना? यू गाइस विल बी सक्सेसफुल। यू आर एवरेज इन मैथ्स और समथिंग, है ना? एवरेज स्टूडेंट मत बनो। रिजल्ट एवरेज हो सकते हैं, देखो हर किसी का IQ अलग अलग है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो। देखो, समटाइम्स यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, बट अगर आप मेहनत से सिंसियरिटी लगते हो ना, ऑलवेज इट्स अ गारंटी यू गेट समथिंग बेटर। आप मेहनती होना, फिट होना, सिंसियर होना सीख लो, शायद IIM से भी कुछ बेटर चीज मिलनी हो, राइट? मतलब आप ये कह रहे हो खुद का मैक्सिमम बस बस, और क्या? अगर कोई बॉर्न जीनियस है, वो भी पूरी मेहनत कर रहा है, उसके साथ तो मुकाबला मत करो ना, दैट विल बी, है ना? अब मैं लेब्रॉन जेम्स के साथ मुकाबला करूं, भाई मैं भी बास्केटबॉल खेलता हूं, पर मैं लेब्रॉन जेम्स नहीं बन सकता, ठीक है ना? मैं जो बन सकता हूं मैं वो बनूंगा। और
ऐसा नहीं है कि लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको कोई वर्ल्ड नंबर 1 कोई रैंकिंग आनी है। जब आप अपने पोटेंशियल, वही अपने आप में इतना सेटिस्फाइंग होता है कि यू अचीव्ड योर पोटेंशियल, यू डूइंग योर बेस्ट, जो कर सकते थे किया है, यू आर अ टफ गाय, है ना। कोई चैलेंज आता आप नहीं घबराते हो, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। और एक में इंपॉर्टेंट चीज, बी फिट फिजिकली। आप सबको बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट टू गाइज, गर्ल्स ऑल्सो। बी फिट, वर्कआउट, ईट राइट, ठीक है ना। पकौड़े पिज्जा थोड़े कम करो, क्योंकि ब्रेन को शार्प करने का एक ही तरीका है, ये क्वांट वगैरह से ब्रेन शार्प नहीं होता है। ये तो आप अपने आप को मतलब यू डोंट इंक्रीज योर IQ। अच्छी डाइट और वेट ट्रेनिंग, यही 2 तरीके हैं ब्रेन को शार्प करने। It works. These are the only 2 scientifically proven things. Eat very good, exercise, run and study, waste less time, है ना। जब पूरा मेहनत की होती है उस दिन शाम को कॉफी पी के भी मजा आता है। अब आज मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं इसलिए आज इसको कॉफी पिलाने ले आया। So good. Anything else? So what is the name of your startup or Elma. which company are you owning? Elma Bay Networks Private Limited. We are in IT Park चंडीगढ़, और हमारा प्रोडक्ट है प्लेसकॉम। हम लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, खुद नौकरी छोड़ के। Good. So good. So अभी जो इंट्रोडक्शन है ये छोटे वाला है, बट जब हमारा सेकंड फेज आएगा तब बहुत बढ़िया लंबे वाला इंट्रोडक्शन होगा। So I invite him specially maybe for half a day, get you ready for the interview thing. क्योंकि IIM का कॉल तो हम ले आएंगे, पर वो कॉल कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं होता है, right? And then you need people like him, like Atul you met, those who have actual vision of, वो यही पूछते हैं MBA क्यों करना है। अब तुम बोलोगे यार मैं MBA करके ही सक्सेसफुल हो सकता हूँ, बिना MBA के मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। MBA में सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। आप यू गो ऑन फर्स्ट डेट, यू गो फॉर यू गो इन अ जॉब इंटरव्यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और आज लोग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को अच्छी तरह से जान लो, रेस्ट विल फॉल इन प्लेस एंड विद अ 360 डिग्री व्यू, राइट। क्या खाना है, क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना, दैट इज द होल क्वेश्चन। वही वो जानना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी कितनी है, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। और एक रिसर्च हुई थी, कंपनीज विच आर रन बाय सेल्फ अवेयर लीडर्स, दे आउट परफॉर्म द मार्केट। So people on an average who are self-aware with same skills, self-aware people on an average earn 41% more, and it is mentioned in my book. All right. Good. Good. It's always great to talk to sharp young people. Work hard. Results अपने आप आ जाएंगे। और अपने आप को लेबल मत करो। ये सबने बोला होगा ये एवरेज एवरेज एवरेज, तुमने बोला मैं भी एवरेज हूँ, यही लेबलिंग होती है। रिजल्ट आप 70% आपके रिजल्ट हैं, क्योंकि आपका एफर्ट भी 70% वाला होगा। आप ऐसा तो है नहीं क्या आपने जब पढ़ना चाहिए था तब सोए हो गए या दोस्तों के साथ घूमे हो गए, ये किया होगा, तो वो आपके एफर्ट का डेरिवेटिव है, राइट। तो आप एवरेज हो क्योंकि जो आप काम करते हैं वो एवरेज है। जब एक्सेप्शनल काम करोगे आप एक्सेप्शनल बन जाओगे। दैट इज द गेम। ऑलराइट, गुड। ठीक है ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी Okay, मच। thanks.